बोलो। Good afternoon. I am Riza from class 10C and my topic is print and India. In this chapter, we will study about manuscript system before print, then how print came to India, then its impact on religion and public, then we will study about new forms of publication under which we will see how it impacted women and poor peoples. Then last topic is print and censorship. So first topic, print. क्या हो रहा है? So first, before the age of print, India had a very old and rich tradition of manuscript. These manuscripts were written on palm leaves or handmade papers. They were written in languages like Sanskrit, Arabic, Persian, as well as in vernacular languages. But there were some problems with manuscript. These problems were they were very expensive, they were fragile and hard to take care, and they had different styles which made it hard to read for everyone. This was the problem which made print famous in India. Now comes the 16th century, the mid of 16th century, when first printing press arrived in India through Portuguese missionaries in Goa. By 1674, around 50 books were printed in Konkani and Kannada language. In 1579, the first Tamil books was presented by Catholic. Then they also presented the first Malayalam book. By the year 1710, Dutch Protestant missionaries had printed around 32 Tamil texts. Then came the first English, but the English press hasn't printed a lot. It hasn't grown much, but still the East India Company has imported a lot of English presses from the 17th century. Then comes the year 1780s, in which an important personality named James August Hickey began to edit the first weekly magazine of India, Bengal Gazette, in which he published about issues regarding to slave trade and a lot of gossip regarding company officials, which made the General Governor Warren Hastings very angry and he prosecuted him. Now the impact of print on religion and public debate. From the early 19th century, a lot of debate was around the religious matters like widow immolation, sati pratha, monotheism, एक ईश्वरवाद और idolatry, meaning मूर्ति पूजन. इन सब टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिबेट थी. और जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था राम मोहन रॉय, जो कि सती प्रथा के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे क्योंकि इनके खुद के एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने इन्हें लीड किया था इस वजह से. तो इन्होंने ना 1821 में एक न्यूज़पेपर रिलीज किया था संबद कौमुदी, जिसमें ये अपने जो एक्सपीरियंसेस थे वो बताते थे कि कैसे जो विडो इमोलेशन हो कितनी गलत है, लेकिन ना जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी वो इसके काफ़ी खिलाफ थी उनके आइडियाज़ के कि जो सती प्रथा है वो बिल्कुल ठीक है. तो इसलिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर रिलीज किया था जिसका नाम था समाचार चंद्रिका. और अराउंड द ईयर 1810 पहली बार जो रामचरितमानस थी उसके पहला प्रिंटेड एडिशन आया था जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया था. इसके अलावा जो मुस्लिम थे, जैसे कि अब मुस्लिम डायनेस्टी का कोलैप्स हो चुका था, तो वो लोग अभी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि कहीं ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो हमें कन्वर्जन के लिए फोर्स ना करे. इसलिए जो मुस्लिम उलामा थे यानी स्कॉलर, जो रिलीजियस स्कॉलर थे मुस्लिम के, उन्होंने ना फतवाज यानी एक ऐसा मतलब कि ऐसे लॉज थे जो जिन पे लॉ कटे नहीं होता था ना, उन टॉपिक के बारे में वो बताते थे कि मुस्लिम को अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, और जो इस्लामिक डॉक्टर आइन है उनके बारे में वो बताते थे. तो मुस्लिम पर ये इफेक्ट था. उसके बाद आता है न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन. उसमें
तो प्रिंट कल्चर काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था, कई सारे शॉर्ट नोट और स्टोरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रिंट होने लगी थी। लेकिन अब बारी थी इंडिया की। इंडिया में भी प्रिंट ने ग्रो करना चालू कर दिया था और अब ना लोगों के पास इजीली प्रिंट अवेलेबल था, काफ़ी ज़्यादा चीप हो चुका था और मैन्युस्क्रिप्ट का सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि पहली बात तो एक्सपेंसिव थी, मैंने कई सारी प्रॉब्लम बताई थी मैन्युस्क्रिप्ट की, तो उसी के रिगार्डिंग उसको अबॉलिश कर दिया गया था और प्रिंट को अपना लिया गया था इंडिया में। रोल आता है प्रिंट का वुमेन्स पर। इंडियन वुमेन्स पर क्या प्रभाव पड़ा? जो लिबरल हस्बैंड और फादर थे, उन्होंने अपनी बेटी और बीवी बहुओं को पढ़ाना चालू कर दिया था। लेकिन हर कोई क्या इतना लिबरल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हिंदू लोग थे वो बिलीव करते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, और जो मुस्लिम लोग थे वो बिलीव करते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो हाथ से निकल जाएगी। सारी ऐसी वुमेन थी जिन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड किया, जिनमें की शामिल थी रसचुंदरी देवी, कैलाश देविनी देवी, तारा शिंदे बाई एंड पंडिता रमाबाई। अब जो 1870s का टाइम आया था तब हिंदी प्रेस ने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ चालू कर दी थी। इससे पहले जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी लाइक मराठी, गुजराती, इनमें ही प्रेस प्रिंटिंग होती थी, लेकिन अब हिंदी जो थी उसमें भी सीरियसली प्रिंटिंग चालू हो गई थी और इसमें एक अलग सेक्शन रखा गया था वुमेन्स एजुकेशन के लिए। और अब वुमेन्स ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, अब आदमी लोगों का काम है ना उन्हें सिखाना कि एक ऑबिडेंट वाइफ कैसे बनना है। इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारी बुक्स प्रिंट हुई थी, लेकिन एक फास्टिलिंग बुक थी जो कि बहुत सारा ज़्यादा फेमस हुई थी, जो कि थी स्त्री धर्म विचार रामचड्ढा द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें ये बताया गया था वुमेन्स को ऑबिडेंट वाइफ कैसे बनना है। अब प्रिंट का जो है इफेक्ट आता है पुअर पीपल्स पर। अब प्रिंट काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुका था, इजी था बाय करना और हर कोई इससे बाय कर सकता था। तो अब जो पुअर पीपल थे लाइक जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, उन्होंने भी पढ़ना लिखना सीखा और अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने चालू किए। उन्होंने अपने आइडियाज़ भी एक्सप्रेस किए और पीपल लाइक B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और E.V. रामस्वामी नायकर, इन्होंने भी अपनी बुक्स लिखी है। एक बहुत फेमस बुक थी गुलामगिरी, जिसमें कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में काफ़ी बताया था कि लोगों को जो नीची जात के लोग हैं, जिन्हें माना जाता है कि वो नीची जात के, उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके बाद आते हैं हमारे वर्कर्स, जो कि कॉटन मिल वर्कर या फिर कोई भी मिल के वर्कर जो होते, वो लोग ना काफ़ी ज़्यादा ओवरवर्क तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे कि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सके। लेकिन एक कानपुर के मिल वर्कर थे जिनका नाम था काशी बाबा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा और कास्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया। उनकी बुक थी छोटे और बड़े का सवाल। इसके बाद कई सारे जो मिल वर्कर थे उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप करनी चालू कर दी खुद को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आने लगा कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन लोगों को जो सपोर्ट करते थे वो थे रिफॉर्मर्स, जो कि बिलीव करते थे कि ये लोग पढ़ना लिखना सीखे ताकि इन्हें पता चले कि ड्रिंकिंग जो है एक्सेसिव ड्रिंकिंग वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल है और वो एजुकेट हो और इनमें कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना है, इसलिए वो लोग उन्हें सपोर्ट करते थे। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, प्रिंट एंड सेंसरशिप। जो 1798 के साल से पहले जो प्रेस की पूरी फ्रीडम थी, आप जो चाहो वो छाप सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन 1890 के आते आते कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप कंपनी की इमेज के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि एक अभी मैंने बताया था बंगाल गैजेट, जो स्टार्ट की बंगाल गैजेट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी के नाम को बर्बाद किया जा रहा था, क्योंकि कई सारी बातें बता जा रही थी। तो इस वजह से कुछ रेगुलेशन और रूल लगाए गए कि आप कंपनी की खिलाफ पब्लिश नहीं कर सकते। अगर उनके साथ पब्लिश कर रहे हो तो आपका मोस्ट वेलकम, बट उनके खिलाफ नहीं कर सकते। अब आती है 1857 की क्रांति, जो कि बहुत ज़्यादा इनफेमस रही थी। इसके बाद अब इंग्लिश गवर्नमेंट को समझ आया प्रिंट का रोल, कि प्रिंट कैसे लोगों की हेल्प कर सकता है इकट्ठा होने में, इसलिए उन्होंने इन द ईयर 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसके पास कुछ रूल वो पावर आ गई थी। अगर किसी भी प्रेस को वो स्टॉप करना चाहते थे वो कर सकते थे, उनकी मर्जी थी। और लोगों को अब जो भी प्रिंट होना था ना वो गवर्नमेंट के पास होकर जाता था और गवर्नमेंट को पता था कि क्या क्या प्रिंट हो रहा है। लेकिन क्या इसने लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग को रोका? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने छुपके से कई सारी कहानियाँ ऐसे पब्लिश करते थे जिसमें ना नेशनलिज्म का मैसेज छुपा होता था। थैंक यू।